क्या कुछ ऐसे सकारात्मक प्रभाव वाले टैबू भी हैं जिसके डाइल्यूट होने से बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ कार्ल मार्क्स? उन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया वो क्या था? आवर पॉलिसी इज टू फेवर डिसआर्मामेंट। तो शस्त्र बेच कर कैसे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे? तो कंट्राडिक्टरी नहीं है? Please may come in, sir. Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have sir. your seat. Thank you, sir. Antariksh. Comfortable? Yes, sir. Okay. Tell us something about yourself. Sir, as you know, my name is Antariksh Kumar. I'm born and brought up in Prayagraj, Uttar Pradesh. I had my brother and a younger brother in my family. I had completed my 10th and 12th from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Prayagraj, Uttar Pradesh only. Then I am a Gale Super 100 scholarship holder. I completed my BTech in Metallurgical Engineering from NIT Raipur, sir. There I got placed in Bharat Aluminium Company, Vedanta Resources. At Balco, I worked for 31 months as assistant manager. My hobbies are, sir, kite flying and playing cricket, etc. Okay. What was the controversy about Balco when it was privatized? Sir, actually, it was controversy from the trade union side to prevent its privatization, sir. Another controversy happened in 2009 when under construction chimney falls and around 45 people died under it, sir. These two are controversy associated with Balco. That time you were there only? No, sir. I joined it in 2017 May, sir. Okay. So before your joining, the accident had happened. Yes, sir. Okay. Now again, Vedanta is in some kind of controversy. Yes, sir. Recently, Vedanta's Tuticorin plant has been in controversy due to a violation of environment norms. And second thing, it is due to its capital inflow, it has delisted from London Stock Exchange. Also, recently, Vedanta has signed a joint venture company along with Foxconn for electronic manufacturing in Ahmedabad, near Ahmedabad, sir. And what else? Sorry, sir, I didn't recalling it. Vedanta has taken a decision that Hindustan Zinc Limited Yes, sir. would buy its non-metal business assets outside India, Okay, and the government has advised them not to do that. okay, sir. Have you I'm gone not into aware that? about that, sir. So why Anil Agrawal remains in controversy of different kinds? He is not in good terms with the tribal population of Odisha, and he's not in good terms with the labor union leaders, workers. Actually, sir, Vedanta prime business is associated with metals and refinery that also involve tribal people dislocation as well as starting new plant in tribal areas. Because due to industrial norms, we cannot establish industries in a proper city region. So most of the time, where ores and minerals are available, Vedanta need to establish their plant in those area. And due to displacement and providing employment and demands of tribals causes some controversy. You're a student of sociology, so naturally you should be sensitive to the fact that society is not meant to be for any industrial undertaking. Yes, sir. We develop all these instruments of economy just to serve the society. Serve the society. Yes, sir. But Vedanta is not behaving like an instrument of society, it is becoming a master of society. I don't think, sir, like that, because with this corporate social responsibility approach, Vedanta is also providing healthcare facilities in tribal areas, establishing primary schools, providing skill development to the tribal people under a Prime Minister skill development program. And further, Vedanta is also providing, sir, employment opportunities to those people according to some sections. Okay, fine. Vedanta is one of the leading companies in the world in non-ferrous metal business. Yes, sir. Can you give us its entire footprint in the world economy? Yes, sir. Sir, Vedanta is one of the leading non-ferrous company in the world. Earlier it was listed in London Stock Exchange. It has a business in Australia. It operates mines in Australia, South Africa, Bolivia, some parts of Canada, Chile. These countries I know. In India, sir, Vedanta has Hindustan Zinc Limited, Sirsa Goa, Sterlite Copper,
and plant in Balco, Korba, Vedanta Aluminium, Lanjigarh, as well as some mines in Kavarda and Manpet. Now Vedanta has also expanding in steel business as well as sir electronic chip manufacturing business. Anil Agrawal is a first generation entrepreneur. How could he grow his business so fast and so large? Sir, due to his idea, I started as a scrap dealer in Mumbai. By scrap dealing and solding them, he first bought Sesa, a company in Goa, then slowly expanded due to his visionary policies, getting the market insights that what is coming next and what metals are going to be need of our. He started Where expanding. he was born and where from he started his career? Sir, I don't know exactly where he was born, but he started his career in Maharashtra, with the scrap business, sir. He was born in Patna, do you know? No, sir. Okay, never mind. Thank you. Antariksh, Yes, sir. you are the student of sociology. Yes, sir. My optional subject is sociology, sir. Yes. What is the role of Karl Marx? Sir, Karl Marx is basically known as one of the father of sociology. He gave the concept early of revolving around economics. He said, sir, all the society superstructure depends on economic base structure. Whatever the changes in mode of production, forces of production happens, that cause changes in society. He said society evolved through stages from primitive to capitalist stage society with change in production, sir. And he gave the concept of historical materialism, alienation in society, class and class struggle. And his main works were Das Kapital and the Communist Manifesto. उन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया वो क्या था? सर, कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल जो सिद्धांत था वो कहता है कि हमारी सोसाइटी में दो क्लास होती हैं, एक बॉर्जुइज क्लास और एक प्रोलेटेरिएट क्लास. बॉर्जुइज क्लास सर वो होती है जो हु ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, जिनके पास सबसे मीन्स रहते हैं. अब प्रोलेटेरिएट क्लास वो रहती है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं करते हैं और बॉर्जुइज के अंदर काम करते हैं. ये क्लास है उनका मार्क्स का डिवीजन है सर. इस दो डिवीज़न के आधार पर उन्होंने जो है वो उनके कंसेप्ट को पॉपुलेशन से जोड़, इस दो वर्ग के आधार पर, इस दो क्लास के आधार पर, इस पे एक पॉपुलेशन का कंसेप्ट जोड़ा गया है. क्या है पॉपुलेशन का कंसेप्ट? सर, मैं एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये है कि जो हु ओन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन, उनकी पॉपुलेशन लेस दैन 1% होती है. दैट कंट्रोल अराउंड 99% ऑफ पॉपुलेशन. इसी कारण हमारी सोसाइटी में क्लास डिवाइड होता है, क्लास स्ट्रगल होते हैं. तो जब न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्ड होती हैं, सपोज जब हमारी ज़मींदारी सिस्टम थी, जब लैंड मेन था, फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो दोनों फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में फ्रिक्शन हुआ क्योंकि लैंड में लेबर चाहिए थे और कैपिटलिस्ट को इंडस्ट्री में लेबर चाहिए थे. तो जब दो एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन और न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन में जब स्ट्रगल हुआ तो सिंथेसिस और एंटी सिंथेसिस हुई, तो हम लोग कैपिटलिस्ट की तरफ आए. फिर से एक नई क्लास क्रिएट हुई, उसमें वर्कर्स और बर्जुइज क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास. यू आर ऑल्सो ए मोटिवेटर, आप एक मोटिवेटर भी हैं. यस सर. रिलीजन किस प्रकार मोटिवेट करता है पीपल को? सर, रिलीजन सर प्रोवाइड करता है आपको सेल्फ चेरिस्ड गोल. रिलीजन हमें एक शांति का अनुभव देता है. जब हम परेशान होते हैं तो किसी भी रिलीजन में अपने गॉड को हम लोग याद करके पीसफुल प्रोवाइड करते हैं. जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वहाँ पे हमें शांति मिलती है. एक वे ऑफ रिलीजन एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट टू अ इंडिविजुअल सर. और रिलीजन किस प्रकार सोशल कंट्रोल को बिहेव करता है? कैन आई टेक 10 सेकेंड्स? यस. सर, रिलीजन सोशल कंस्ट्रेंट लगाता है पीपल पे. एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर रिलीजन में क्या चीज़ें की जानी चाहिए, क्या नहीं की जानी चाहिए. उसी के अकॉर्डिंग लोगों का बिहेवियर रहता है. फॉर एग्जांपल इन सर्टेन रिलीजन सर कुछ चीज़ें अलाउ होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं अलाउ होती हैं. हम लोग के रिलीजन में सर जैसे हिंदुज़म में होता है सैक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट होता है सर. तो रिलीजन को एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स कहते हैं. सैक्रेड थिंग्स वो हो जाती हैं कि जो नॉर्मल चीज़ों से अलग की जाती हैं. सपोज़ कि सर गंगा जल एक हो गया और एक नॉर्मल पानी हो गया. गंगा जल और पानी दोनों में डिफरेंस ये है कि गंगा जल को हम लोग सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और नॉर्मल पानी हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. तो इस प्रकार हो गया सर. आप
इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर चुके हैं, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? सर कार्बन क्रेडिट सर एक मैकेनिज्म होता है जो हमारे रिसेंट न्यूज़ में आया है। जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है सर एक सबको टारगेट देते हैं कि आपको इतने से ज़्यादा या इतने से कम आपको मैंने कार्बन क्रेडिट पूछा, कार्बन ट्रेडिंग नहीं। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कार्बन ट्रेडिंग। सॉरी सर, कार्बन क्रेडिट सर वो होता है जो कंपनी का जो टारगेट रहता है उससे कम उसने एमिशन किया तो जितना बच जाता है सर उसको आप ट्रेड कर सकते हैं किसी और कंपनी से। अगर उसने ज़्यादा यूज़ कर चुका है उसके बदले उसे चाहे पैसे मिलते हैं चाहे फिर नॉर्म मतलब जो आपका टारगेट कंप्लीट होता है। व्हाट इज कार्बन स्टॉकिंग? सर एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेम्बरिंग बट आई गेस कार्बन स्टॉकिंग इज रिलेटेड टू कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी सर। ओके, तो क्या जो है वह एक जैसे बुसेस है, कहीं किसी एरिया में बुसेस हैं, देयर इज अ सम जो है वह डेंस फॉरेस्ट वेयर वी कैन एज्यूम दैट देयर आर मोर कार्बन स्टॉकिंग। सर बुशेस एंड बुसेस एंड जो है वह डेंस फॉरेस्ट, सर इन डेंस फॉरेस्ट देयर वर मोर कार्बन स्टॉकिंग। देयर आर मोर कार्बन स्टॉकिंग। थैंक यू। अंतरिक्ष, यस सर। हम लोग मेक इन इंडिया प्लान के तहत जो है आर्म्स जो ट्रेड है या आर्म्स जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ओके सर। तो आप बता सकते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपको पता हो जिसमें हमने आर्म्स डील की हो कोई? ओके सर, रिसेंट सर इंडिया ने इंडियनली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर्स के HAL हिंदुस्तान HAL के डेवलप्ड हेलीकॉप्टर्स है उनके कुछ कंट्रीज़ के साथ समझौता किया है। एग्जैक्टली कंट्रीज सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग का टारगेट है कि जितने भी हम लोग डिफेंस अपना प्रोक्योर करते हैं आर्म्स डील तो उसमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट 2/3 सेल्फ मेड हो और 1/3 सर क्या कहते हैं अपना इम्पोर्ट हो। धीरे धीरे हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैव डील फॉर ब्रह्मोस एज वेल। यस सर। हाँ, तो उसके बारे में कुछ मालूम है? सर ब्रह्मोस के साथ सर रशिया के साथ मिलके हम लोग बना वी हैव सेल ब्रह्मोस ना सर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ किसी के साथ डील किया। एग्जैक्ट मैं कंट्री रिकॉल नहीं कर पा रहा। डोंट नो अबाउट द कंट्री। ओके, आवर पॉलिसी इज टू फेवर डिसआर्मामेंट। ओके सर। ठीक ना, एंड वी आर डीलिंग इन आर्म्स सेल। ओके सर। तो डोंट यू फाइंड इट कंट्राडिक्टरी? एक्चुअली सर आर्म्स सेल जो हो रही है हमारी वो सर कंट्री के इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जब होता है तो उसके लिए कंट्री प्रिपेयर रहे इसलिए सर स्टॉक कर रहे हैं। डिसआर्मामेंट हमारी, मैं आपसे नहीं पूछा हम स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम हथियार बेच रहे हैं। यस सर। ठीक ना, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें पूरे विश्व में निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। यस सर। तो शस्त्र बेच कर कैसे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे? तो कंट्राडिक्टरी नहीं है सर? सम पॉइंट पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है बट एक स्टॉक मेंटेन, मेरे हिसाब से सर जो एक स्टॉक मेंटेन करना होता है कि आप एक्सटर्नल एग्रेशन या जो भी अपने कैपेबल रहें, कभी कोई अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टांसेस आ गए उसके रिलेटेड सर, और मेक इन इंडिया अपने इंडिया एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ये चीज़ कर रहा है। तो अभी तो ये सर सही डायरेक्शन में है। हमको आर्म्स सेल की तरफ जाना चाहिए और डिसआर्मामेंट को छोड़ देना सर चाहिए। नहीं सर, डिसआर्मामेंट हमारा एक्चुअली ये है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है सर हमारी, है ना। जब हम इंडिया की पॉलिसी सर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, चाहे वो न्यूक्लियर के टर्म्स में हो या फिर वॉर के टर्म्स में हो। जब भी काउंटर अटैक होगा तो उसको मतलब जब भी अटैक होगा उसको काउंटर करने के लिए ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये करती है सर। ओके, मतलब बेसिकली वी आर नॉट इन फेवर ऑफ डिसआर्मामेंट, वी आर इन फेवर ऑफ नॉट टू यूज फर्स्ट अवर वेपन्स ना। यस सर। ओके, वी आर इन फेवर ऑफ आर्मामेंट। नो सर, इट्स अच्छा चलिए, डोंट गेट कंफ्यूज। ये बताइए कि एनपीटी के बारे में जानते हैं? यस सर, इट्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हाँ। सर एनपीटी के थ्रू जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स थे, तो स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियर स्टेट्स थे जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, तो जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स थे वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करें, है ना। तो जो पहले से डेवलप करके रखे उनके लिए वो लोग ना करें, उसलिए एनपीटी साइन हुआ था सर। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, फिर विड्रॉ कर लिया। इंडिया ने साइन किया, नहीं नॉर्थ कोरिया ने। हाँ ठीक है, नॉर्थ ने विड्रॉ कर लिया। इंडिया पाकिस्तान ने कभी साइन नहीं किया और इंडिया इसके पक्ष में। और रीजन क्या था, इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? सर इंडिया ने ये कहा था कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और सेल्फ डिफेंस के अलावा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है और उसकी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। और जब तक पहले बाकी फर्स्ट
फर्स्ट स्टेज कंट्रीज ने जब डिसआर्मामेंट उनको पहले करना है फिर हम करेंगे सर. और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? सर आई डोंट नो एग्जैक्टली पाकिस्तान स्टैंड. पाकिस्तान से स्टैंड यू डोंट नो. ओके, ये बताइए कि अभी पाकिस्तान में जो क्राइसिस है ओके वो सर. क्या है क्राइसिस? Sir, basically, Pakistan is suffering from its one of the worst ever economic crisis, where the inflation is at its peak. People are not able to afford even basic amenities like flour, wheat, rice, oil. तो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है सर. ये जो हुआ है सर, ये कुछ इंस्टेंट आप जो अभी इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो डिक्लाइन हुआ उसको कह ही सकते हैं, बट ये इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट सर. बेसिकली ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज इज नॉट वेल मेड ना. यस सर. अच्छा, आपसे आखिरी जो है कुछ प्रश्न आपसे हैं. पतंग उड़ाना आपकी हॉबी यस है, सर. क्या कारण है कि पहले पतंग उड़ाना जो है उसके आप देखते थे सामान्य तौर से बहुत लोकप्रिय था, Yes, sir. इट वाज वेरी पॉपुलर इन द Yes, sir. सोसाइटी, बट अभी वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है यस. और सिर्फ जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं ओके सर. उन्हीं में आप देखते हैं कि पतंगे आपको दिखाई देती हैं. व्हाट आर द रीजंस, मेजर सर रीजंस? एक्चुअली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ओवर द ईयर पतंग उड़ाई जाती उड़ाई है. जाती है अभी. हाँ सर. हाँ. बट आपका कहना सही है सर, ये कम हो गया है. उसके रिकॉर्डिंग एक रीज़न ये है कि अब के जो जनरेशन नए बच्चे आ रहे हैं सर, वो मोबाइल कंप्यूटर गेम्स इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व रहते हैं. सेकंड सर, हमारी सोसाइटी में पतंग उड़ाने को थोड़ा सा अच्छा समझा नहीं जाता है. ये रीज़न भी है एक सोशल कंस्ट्रेंट का. कि क्यों ऐसा था कि मतलब आपके समय में भी है उसके पहले भी पतंग उड़ाने को अच्छा नहीं समझा जाता था? सर ये ऐसा समझा जाता था कि जिनके पास कोई टाइम नहीं रहता वो पतंग उड़ाते हैं, ऐसा समझा जाता था पहले. या एडिक्टिव? सर यू कैन से सम टाइम एडिक्टिव. लोग सुबह से शाम तक मतलब जो लोग हम लोग रहते थे वो शाम को ही उड़ाते थे. ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. ये बताइए कि चाइनीज जो स्ट्रिंग्स हैं ओके वो सर. बैंड हैं, ठीक ना? ओके क्या सर. रीज़न है चाइनीज स्ट्रिंग्स को बैन करने के लिए जो काइट फ्लाइंग के लिए यूज़ होती है? सर यस सर. हाँ, सर चाइनीज स्ट्रिंग बैंड इसलिए हैं कि वो नायलॉन टाइप की उससे बनी रहती हैं, ठीक है. और जब रोड पे चलते हुए कोई पतंग कट के जाती है तो कई बार होता है कि जो हम लोग मोटरसाइकिल व्हीकल ड्राइव कर ठीक रहे है, होते इट इज़ डेंजरस टू लाइफ, ठीक है. यस सर. और दूसरा सर, ब्रेकेबल नहीं होती हैं. वो और- कॉटन का थ्रेड आसानी से टूट जाता है, ब्रेकेबल नहीं होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी में. और बायोडिग्रेडेबल है? नहीं सर, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है ये. इसमें पंछियों के पैर में या पंख में फंस जाती हैं, उससे भी लॉस होता है. ठीक है. अंतरिक्ष, what do you stand by taboos or particularly social taboos? सर सोशल टैबूज हमारी सोसाइटी में वो होते हैं जिनको हम लोग सोसाइटी देखती है सबके साथ होता है बट एक्सेप्ट करना नहीं चाहती. इन सिंपल टर्म्स, फॉर एग्जांपल सर, मेंस्ट्रुएशन टैबू रिलेटेड टू वुमेन, टैबू रिलेटेड विथ deprived section, untouchability. These are the taboos associated with in our society. You can also say sir, when by sociological means, अभी भी हमारी सोसाइटी में अराउंड 93 से 94% जो मैरिज होती हैं वो एंडोगैमी में होती है. तो जो भी आउटसाइड द कास्ट मैरिज होती हैं उसको भी आज तक अभी इस टैबू के साथ देखा जाता है. क्या कुछ ऐसे सकारात्मक प्रभाव वाले टैबू भी हैं जो जिसके डाइल्यूट होने से बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं? सर एक सर खतरा तो नहीं कहूँगा, बट जैसे हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले से डाइल्यूट हो रहा है और न्यूक्लियर फैमिली या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है, तो उससे हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आ रहा है सर. क्या नशाखोरी भी एक परंपरागत टैबू है और इसके कमज़ोर होने से समाज में नशाखोरी का खतरा बढ़ता जा रहा है? नशाखोरी के कमज़ोर होने से, सॉरी सर आई डिडंट गेट इट. Whether nashakori is a taboo, ओके सर. यस सर. and if that is Yes sir, today people are especially the young population is getting more exposure to alcoholism or other form of banned narcotic substances. कई सारे recent incident भी हुए हैं सर जिसमें पुलिस की रेड पड़ी है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी पकड़ाए हैं. तो एक तरीके से सर मेन स्ट्रीम में ये सब चीज़ें जब आ रही हैं तो ये टैबू हमारी सोसाइटी को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रहा है. ये चीज़ें that's काफ़ी- until the taboo was strong, people were hesitant in consuming alcohol. Now taboo is diluting. Sir, see sir, actually alcohol is legal in India. It happens through government sale. Government is also getting a good amount of revenue.
But today's generation is going towards alcoholism, and this is what recent data had shown, sir. Recent studies, alcoholism case is rising. ठीक है, एक और टैबू है भारत में, तलाक भी एक टैबू है, Yes, sir. लेकिन ये टैबू भी कमजोर पड़ रहा है। Yes, sir. इससे समाज में क्या खतरे पैदा हो रहे हैं? Can I take few Hmm. seconds, sir? सर, इससे एक खतरा ये पैदा हो रहा है कि जब टैबू वीक हो रहा है, तो हम पहले हमारी इंडियन सोसाइटी में तलाक की रेट थी वो काफ़ी कम थी। पहले फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन अगर कोई दिक्कत होती थी मैरिज में, तो उसको आस-पास मतलब आपस में बातचीत से सुलझाने की कोशिश करती थी। आज जब ये वीक हो गया है तो नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ए बैड सोशल नॉर्म, तो तलाक रेट बढ़ गए हैं सर। और फ्रीक्वेंट और हिंदुइज़्म में सर जो मैरिज वन ऑफ द 16 संस्कार है, वो भी इसके कारण वीक हो रहा है। और डबल मैरिज के कॉन्सेप्ट बढ़ रहे हैं, रीमैरिज के कॉन्सेप्ट बढ़ रहे हैं। एक तरफ से सर ये इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये है कि सर पहले जो हमारी फीमेल्स थी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के कई बार अपनी सफरिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी सर, ये होता था। और तलाक नहीं ले पाती थी कि एज अ बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैबू। अब वो चीज़ें जो वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं वो सामने आ रहे हैं, वो अपना बेस्ट देने की अपना मतलब अपनी जो दिक्कतें हैं वो बता रही हैं। और उसका नेगेटिव साइड ये है कि सर की रेट ऑफ तलाक बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे तलाक हो जाते हैं, और जहाँ पे मीडिएशन के थ्रू बात सही हो जा सकती है। अच्छा, हाउ दिस टैबूज शेप आवर थिंकिंग एंड बिहेवियरल पैटर्न? सर एक्चुअली दे एक्ट एज अ मेंटल कॉन्स्टेंट इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि क्या कहते हैं कि बॉयज़ नीड टू बी मस्कुलर एंड डू नॉट नीड टू शो इमोशंस, whereas गर्ल्स यूज टू प्ले विद किचन टॉयज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बचपन से हमारी जैसे टैबू में परवरिश होती है, चाहे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो या मैट्रियार्कल सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग की बोलने की क्षमता, किसी चीज़ को देखने की क्षमता, कैसे हम किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, ये डेवलप होती है सर। Okay, nice talking to you, Antariksh. Your interview is over. You may go now. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Please may come in. Come in. Have a seat, Antariksh. Thank you, sir. Your interview is on 13th of March. Yes, sir. And is this the first time you are going for Yes, interview? Good. Why did you leave your job? Sir, I leave to prepare for civil services, sir. Okay, so there could be some question around Okay, that. sir. Be ready about it. Because you have worked in Vedanta group, so it's very much expected that there will be question of variety of kinds on Okay, sir. Vedanta. I think you are prepared, Yes. but you can further update your information, etc. Okay, sir. Particularly about the Hindustan Zinc Limited Okay, sir. वाला जो चल रहा है अभी. You are very good candidate, Antariksh. Okay, sir. On Thank almost you, all sir. the parameters, you have performed excellently. Thank you, sir. Your entry is good. Your sitting, your greeting, etc. good. Thank you, sir. Tie is little glossy, so if you can Okay, take sir. more sober color of tie, Okay, sir. that will be better. But your dress sense is also good overall, and you have very good flow of communication. Your verbal abilities are good, efficient. You also displayed on occasions good sense of judgment, balanced, Okay, sir. and on none of the question you tried to mislead the board members. So Okay, sir. that indicates that you are also displaying intellectual integrity. Okay, sir. That's also very positive for your personality. Okay, sir. Your facial expressions remain mostly positive. Okay, sir. That's good. But you can further afford to be more smiling gestures Okay, sir. sometimes. You had a clear and logical exposition, so that shows that you were efficient in your thought and expression. Okay, sir. So all these parameters display that you are already prepared for interview. Okay, sir. And according to our assessment, you are going to score very good marks in interview. Okay, sir. Only 2-3 points. One, that they will themselves ask you to remove this handband, This, sir. daggi or kada. Okay, sir. वो अंतिम क्षण में उसका कोई दाग न रह जाए, इससे अच्छा है कि 2-4-5 दिन पहले ही हटा Okay, लीजिए. sir. And on 2 occasions while explaining a particular answer, you expressed hum Hindu. Okay, sir. Use only Hindu. Okay, sir. Don't
remain neutral. Why Okay. to associate yourself with one belief or one community? Sure, sir. Other things are fine. That means even in hobby and other areas you were prepared well in sociology, etc. Good knowledge and good expression. So we are very happy, very enthusiastic. Thank you so much, sir. Any doubts? Sir, actually, before giving interview, I have given for a few mocks also. I don't feel very confident, sir. But it happens, it goes with flow when I sit inside giving mock interviews. Before giving mock, I don't feel much confidence, sir. यहाँ मुझे नहीं लगा कि आपका चेहरे पे कोई डरा हुआ भाव Okay. था. Yes, sir. You were coming forward in a good. A little bit of anxiety is very natural. Okay, sir. बहुत कॉस्मेटिक और बहुत एक्सट्रोवर्ट होने की भी कोई जरूरत नहीं. Yes. The board members, the experienced board members also appreciate Yes. that this young man or young woman has come for Yes, sir. a lifelong decision making process. Yes, sir. तो उसको लेकर मुझे नहीं लगता उस don't be conscious about Okay, sir. this dimension. Sir, one more question I have. Sir, I left my job to prepare for civil services. Sir, what do you think the best answer regarding this? Because I am giving it honestly because that I left to prepare for civil services. Which attempt this is for you? Sir, it is my second UPPCS attempt. Second or third? So sorry, UPPCS, sir, second mains, third third UPPCS attempt, sir, or second UPSC attempt. ठीक है, आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि sir, in the initial 4-5 months I tried to balance both my preparation and my job. Yeah. But I felt that I'll not be able to do justice to either. Yeah, okay. That's exactly what happened with me, sir. That's why I left job. तो बस. Okay, sir. Any other doubt? No, sir. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.